Very good morning students, welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture I am going to start new topic, that is revaluation of assets and liabilities. This topic I have explained to you in chapter number 3 also, that is change in profit sharing ratio among existing partner. In that chapter also I have told you about revaluation account and or reassessment of assets and liabilities account and format of revaluation account. Now see beta, what is revaluation account? Revaluation of assets and liabilities is done with the help of a new account called revaluation account. Sometimes this account is called as profit and loss adjustment account. This account is a nominal account in nature. Therefore, if there is loss due to revaluation, revaluation account is debited, and if the revaluation account results a profit, the revaluation account is credited. तो फॉलोइंग एंट्रीज पास हो जाती है बेटा. रिवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट है जो रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को करता है, और अगर कहीं पे भी लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, और अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है. एंट्री देखिए, जब वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स होगा तो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. इफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. For increase in the value of liability, revaluation account debit or profit and loss adjustment account debit to liabilities account. For decrease in the value of liabilities account debit to revaluation account. On the basis of above entries, a revaluation account or profit and loss adjustment account is prepared. If the credit side of this account is in excess, it reveals a profit, and if the debit side is excess, it reveals a loss. Such profit or loss will be divided between the old partners in their old profit sharing ratio. जब प्रॉफिट शो करता है तो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसी का रिवर्स हो जाएगा जब लॉस शो होगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. नाउ सी फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. डेबिट साइड नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड टू क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. तो बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स. टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, to increase in value of liabilities, to unrecorded liabilities. और profit हो गया तो to profit on revaluation, and by loss on revaluation account. Is it clear? Now see question number 50. Pass journal entries to record the following transaction on the admission of a new partner. Land and building is undervalued by rupees 2 lakh. Land and building undervalued हो गई by rupees 2 lakh. It means it is increase in the value of asset. ठीक है. Number 2, stock is overvalued by 20%, decrease in the value of stock. Provision to be made for compensation of 20,000 to an ex-employee, that is loss on the unrecorded expenses. Sundry debtors appeared in the books at rupees 1,50,000. They are estimated to produce not more than 130. It means provision for doubtful debts create हो गया 20,000 का. Creditors include an amount of rupees 10,000 received as a commission, that is commission received, तो creditors की value decline हो जाएगी, decrease in value of liabilities. A bill of exchange of rupees 40,000 which was previously discounted with the banker was dishonored on 31st March 2018, but no entry has been passed for it. ठीक है. Now सीधा इसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी बेटा. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज 2 लाख. देन स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई थी, ओवर वैल्यूड हो गया था 20%. एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 10,000, बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज. Then provision to ex-employee create होता, that is also increase in liability, revaluation account debit to provision for compensation account 20,000. Doubtful debts create हुआ था तो revaluation account debit to provision for doubtful debts account 20,000. क्रेडिटर्स में आपका जो है कमीशन रिसीव था 10,000, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्लाइन हो गई थी. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000. डिसऑनर हो गया था बिल, इट मीन्स सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू जो है आपकी बीइंग डिसऑनर फॉर BR डिस्काउंटेड विद द बैंक, तो सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू डिक्लाइन हो गई, दैट इज सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000. मशीनरी, value of machinery decreases by 80,000. It is revaluation account debit to machinery account 80,000. And then उसके बाद उसकी मशीनरी की वैल्यू जो है डिक्रीज हो गई थी 1,20,000 से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, दैट इज 1,20,000. ठीक है. देन एक्सपेंसेस पेड हुआ था, दैट इज ऑल्सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 8,000. इज इट क्लियर. तो ये आपके एंट्रीज है, जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस पे भी आप ध्यान दीजिएगा. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 60. बेटा बीच में आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आपका जो है उसकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के क्वेश्चन है. ये टॉपिक मैंने आपको क्लास वो चैप्टर 3 में समझाया था,
उससे रिलेटेड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ही आई विल डिस्कस इन जूम क्लासेज. नाउ सी द 8 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनाने होते हैं. सी following Vimal and Nirmal are partners sharing profit in the ratio 3:2. Following was the position of the business as at 31st March 2018. Assets given है, liabilities given है. On 1st April 2018, Kailash agrees to join the business on the following terms and conditions. He will introduce rupees 40,000 as his capital and pay rupees 20,000 to the existing partners for his share of goodwill. The new profit sharing ratio will be 2:1:1. Vimal, Nirmal and Kailash ka revaluation of assets will be made by reducing plant and machinery to rupees 35,000 and stock by 10,000. Provision of 1,000 is to be credited for bad and doubtful debts. Pass general entries for the above arrangement and give the balance sheet of the newly constituted firm. Sacrificing ratio calculate करोगे इसमें बेटा, तो sacrificing old minus new कर देंगे आप. तो sacrificing ratio जो है आपका, sacrificing ratio क्या आ जाएगा, old minus new करके sacrificing ratio is 2:3 among Vimal and निर्मल. ठीक है, तो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप सबसे पहले जनरल एंट्रीज इसकी बुक्स में पास करेंगे और उसके बाद आपको बैलेंस शीट पूछा हुआ है, तो सीधा जनरल एंट्रीज बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट. ये ओल्ड रेशियो में पीएनएल अकाउंट ट्रांसफर हो गया जो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में गिवन था. देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन इंक्रीज 15,000 डिक्रीज हो गई थी वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. टू स्टॉक अकाउंट 4,000 डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक. To provision for of doubtful debts account 1,000 being value of assets and provision made for doubtful debts. Then Vimal's capital account debit, Nirmal's capital account debit to revaluation account. लॉस हो गया था revaluation का 12,000 and 8,000 इन दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया. देन गुडविल जो थी आपकी रिटर्न ऑफ हो गई, ये भी आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में गिवन है. मैंने आपको अभी भी टॉपिक समझाया था. गुडविल के लिए ओल्ड वैल्यू में डिवाइड हो जाती है अमंग द पार्टनर्स. विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये ओल्ड रेशियो में अमंग ओल्ड पार्टनर्स डिवाइड होती है. 6,000, 4,000 एंड 10,000. देन जो गुडविल कैलाश लेकर आया है वो आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल है, कैश में आई है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश कैपिटल भी लेकर आया था 40,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000. और ये गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3 में डिवाइड हो जाएगी अमंग विमल एंड निर्मल. दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट 8,000 and 12,000. Now she partners capital account. By balance brought down, विमल एंड निर्मल की कैपिटल है 60,000, 32,000. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में गिवन है तो बाई साइड आ जाएगा 12,000, 8,000. बाय कैश अकाउंट, ये कैपिटल है न्यू पार्टनर की कैलाश की 40,000. बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 8,000 and 12,000. टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू साइड आ गया 12,000, 8,000. टू गुडविल अकाउंट, गुडविल रिटर्न ऑफ 6,000, 4,000. और जो बैलेंस आ गया दैट इज आपका बैलेंस कैरी डाउन. न्यू कैपिटल है 62,000, 40,000 एंड 40,000. जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में आपके 20,000 की वैल्यू आ गई. कैपिटल न्यू पार्टनर्स की कैपिटल जो कैपिटल अकाउंट में थी दैट इज विमल, निर्मल, कैलाश 62, 40 एंड 40,000. 142 की कैपिटल आ गई बेटा. देन कैश अकाउंट 74,000 जो कैश था आपका ओल्ड बैलेंस शीट में, उसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल और गुडविल प्लस हो जाएगी. डेटर्स 18,000 से प्रोविजन माइनस हो गया 1,000, 17,000. स्टॉक की वैल्यू न्यू आ गई 36,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी भी आपकी 35,000 पे इवेल्यूएट हुई है. दैट इज़ 1,62,000 बैलेंस शीट का टोटल है. ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन से बेटा जिसमें पूरे क्वेश्चन आते हैं आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61. X and Y are sharing profit in the ratio 5:3. Their balance sheet as of 31st March 2018 was, balance sheet given है बेटा, W workman compensation reserve given है balance sheet. Now see, they admit Z into partnership on 1st April 2018 with 1/8 share in profit. Z brings 20,000 as his capital and 12,000 for goodwill in cash. Z acquires the share entirely from X. It means totally X ने sacrifice किया है. Provident fund is to be increased by 5,000. Debtors are all good. Therefore, no provision is required on debtors. Stock include 3,000 for obsolete items. Creditors are to be paid rupees 1,000 more. Fixed assets are to be revalued at 70,000. इसमें भी जनरल एंट्री नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं आपको बेटा. जनरल एंट्री सबसे पहले वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो गिवन था एसेट साइड में. एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500, 900, 2,400 प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया. देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसमें कोई क्लेम नहीं था तो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा इन द ओल्ड रेशियो. ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया आपने पार्टनर्स के अकाउंट में. देन आपके जो है डेटर्स को गुड बोल दिया सारा, तो हम उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू स्टॉक अकाउंट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट
एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन हो गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 600 और फिर आपने जो लॉस ट्रांसफ़र कर दिए, दैट इज एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6900, 11,500, 18,400, ठीक है, ये आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। प्रोविडेंट फंड इंक्रीज़ हुआ है 5,000 से बेटा, डेटर्स को गुड बोला है, फिक्स एसेट्स को रिवैल्यूएट कर दिया है, तो ये वैल्यूज़ हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दी टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आपके इसके बाद जो है नेसेसरी अकाउंट्स भी पूछा है क्वेश्चन में, तो आप नेसेसरी अकाउंट भी ड्रा करेंगे पार्टनर्स के अकाउंट में। सी रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 600 का था, टू स्टॉक अकाउंट 3,000, टू फिक्स एसेट्स अकाउंट 10,000, टू प्रोविडेंट फंड 5,000, टू क्रेडिटर्स 1,000, तो लॉस ट्रांसफर्ड हो गया था पार्टनर्स के अकाउंट में। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बाउट डाउन हो गया 70,000, 31,000, 70,000, 31,000 बैलेंस बाउट डाउन हो गया इनका, ठीक है। देन इसके अलावा जो है बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो गया ओल्ड रेशियो में। देन बाय बैंक अकाउंट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, बाय गुडविल अकाउंट 12,000 आपका, क्योंकि इंटायरली एक्स ने करा है सेक्रीफाइस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसे लॉस हो गया आपका, टू बैलेंस क्रेडिटर। एंड देन बैलेंस शीट में भी हम इन्हीं को शो कर देंगे हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर 16,000, प्रोविडेंट फंड 15,000, न्यू कैपिटल आ गई इसमें, और बाय और कैश एट बैंक 37,000, इसमें आपकी कैपिटल और गुडविल प्लस हो गई है, सन्ड्री डेटर्स 20,000, स्टॉक एंड फिक्स एसेट्स। सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड बेटा, ये सारे अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन करिएगा इन द बुक्स, और आप क्वेश्चंस को करिएगा। इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।